أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Honorable Executive Councillor Information, Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil, Engineer Punsuk Tashi sir, respected Joint Director Information, Imtiaz Kachu sir, Anwar Hussain AIO, DIPR Kargil, President Press Club Ladakh Kargil Hussain Khalu sir, resource persons Mekat Hashmi from ABP News, Jamal Afroz from Aaj Tak, Iftikhar Hussain from Planet Ladakh, my dear colleagues and other media persons, a very pleasant afternoon and Assalamu alaikum to you all. जैसे कि हम सब लोगों को इल्म है, आज हमारे 2 रोज़ा स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का आखिरी दिन है, तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे AI और DIPR कारगिल से कि आप ट्रेडिशनल शॉल से हमारे गेस्ट इंजीनियर पुंसुक ताशी ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर इंफॉर्मेशन लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का वेलकम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वेलकम करें। इसके बाद हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन जमाल अफरोज खान सर को भी ट्रेडिशनल शॉल से वेलकम करें। शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सर से कि आप प्लीज हमारे अगले जो हमारे रिसोर्स पर्सन है सन ऑफ सॉइल इफ्तिखार हुसैन सर को ट्रेडिशनल शॉल से वेलकम करें। अब इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे प्रेसिडेंट प्रेस क्लब लद्दाख हुसैन खालू सर से कि आप प्लीज डैश पर आए और अपने ज़रीफ़ ख्यालात से हमें नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Honorable Executive Councillor for Information, LHDC Kargil, Engineer Punsuk Tashi sir, the very young, energetic Joint Director Information, Union Territory of Ladakh, Imtiaz Kachu sir, our esteemed guest speakers, Mekat Hashmi ji, Strategic Partnership Manager and Associate Executive Editor with ABP News, and Mr. Jamal Afroz Khan, Senior Cameraman with Aaj Tak and currently with National Famous Event Raikta. Other esteemed guests, staff members from DIPR Kargil, my colleagues from Press Club of Ladakh Kargil, and other dignitaries. As per our custom, Assalamu alaikum, Jule, Namaste to all of you. First of all, on behalf of Press Club of Ladakh Kargil, it gives me immense pleasure to welcome you all to this significant workshop. I would like to express my gratitude to Shri Imtiaz Kachu ji and his dedicated team, especially Anwar Sarpa, for organizing this platform, which is an incredible opportunity for the local media fraternity to enhance their skills and knowledge. Over the years, the DIPR Kargil has supported the local journalists by organizing various events such as National Press Day, exposure tours for our local journalists, and other initiatives been highly beneficial. Since Ladakh became full-fledged Union Territory, we have observed remarkable growth in the opportunities for media professionals. Some of the milestones achieved include media accreditation for senior journalists, empanelment for local newspaper and government advertisement, the introduction of multimedia collaboration. These initiatives not only empower the local media, but also created avenues as to highlight the unique stories and challenges of local boundaries. Some struggle and challenges of local media in Kargil, however, despite these opportunities, the media fraternity in Kargil continues to face several challenges, like harsh winter and remote coverage, covering stories in far-flung area of Kargil during the harsh winter.
is a significant challenge. Camera batteries fail in extreme cold. The internet connectivity remains unreliable. While 5G networks are being advertised on national media, social media, but on ground performance often resembles 2G. I'm talking of rural areas. So, lack of professional opportunities for journalism graduate. Degree holder in mass communication and journalism struggle to find relevant opportunities with some living government jobs to work as freelance in private agencies. Limited support for media during events like during national programs, festivals or UT level programs. There is often no dedicated space or consultation with media professionals to ensure their needs are addressed. Like when Army, our Jamal Afroz Khan Sahab elaborated in his speech that one man army for media professionalism in Kabul media professional work as one man army. Handling, reporting, camera, script writing and editing alone due to manpower and revenue constraints. Revenue challenge. Local media house face financial challenges with low payment from agencies, limited support from government and private sectors. These issues highlight the urgent need of structural and financial support to help media professionals fulfill their responsibilities effectively. About our press club, sir, I want to give a brief note on our press club. Our press club of Ladakh was officially inaugurated in 2018 before the abrogation. Initially, we erected a government building near the IPR office by then Deputy Commissioner Shri Basirul Haq Chaudhary, sir. But due to space constraint and premises, we are not fully operational. Thanks to the effort of Honorable President, Chairman, Chief Executive Councillor, LHDC Kargil, current Deputy Commissioner Shrikant Balasab Suse, our Executive Councillor for Information, Janab Punsok Tashi sir, and our Joint Director Information, we have now allocated a small piece of land at LHDC complex for constructing new press club. Most formalities are almost completed, ladies are also, but funding is awaited to commence the construction, sir. Request for support on behalf of our press club. Through this press club, I humbly request our today's chief guest, Shri Punsok Tashi ji, is Information, JD Information, Imtiaz Kacho sir, to expedite the allocation of funds for the new press club. Building this infrastructure will be instrumentally addressing many of the challenges faced by media professionals. I want to conclude my speech, sir. In conclusion, I want to thank everyone for their presence at this workshop, especially my colleagues from the Press Club of Ladakh Kargil. Special thanks to once again the IPR Kargil Ladakh, Shri Imtiaz Kachoji, Anwar Sahab, Eddie Razali Sahab, Eddie sir, and for organizing this event, which I am confident will be highly enriching and beneficial for all the participants. Let us take this opportunity to learn, grow, and better serve the people of Kargil through our work. Thank you. May God bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहुत बहुत शुक्रिया खट्टा हुसैन खानू। अब मैं गुजारिश करती हूँ हमारे जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन इम्तियाज काचू से कि आप प्लीज डायस पर तशरीफ लाएं और अपने ज़रूर ख्यालात सुनाएं। Good afternoon, Honorable Executive Councillor, LHDC Kargil, Engineer Punsok Tashi Sahab. The very dynamic Punsok Tashi Sahab has been always so gracious and so dynamic, plus being so supportive for the information department and any initiative that the department takes. खुशामदीद कहूँगा हमारा अफरोज साहब का वेलकम करता हूँ दोनों आपको और निका ताजवी साहब खुशामदीद करगिल के सरजमीन में पे आए और इस ठंड में बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे खास दोस्त तीसरे रिसोर्स पर्सन जो हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए थे। और मैं बताऊँगा सर आपको कल JIPR लद्दाख के साथ इम्पैनल्ड है कैटेगरी 1 के अच्छे फिल्म मेकर हैं इफ्तिखार हुसैन साहब, और जो अच्छे अच्छे फिल्में बनाते हैं। फाउंडेशन डे के इस साल के एडिशन पे भी इनकी फिल्म इन्हीं की बनाई हुई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का प्रोड्यूस किया एक फिल्म
अचीवमेंट्स पे हम फाउंडेशन डे के दिन दिखा चुके हैं, पिछले कई सालों में भी कर चुके हैं ये। और आज यहाँ पर तशरीफ फरमा हुसैन खालू साहब, हमारे दोस्त, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख करगिल, उनके बाकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी वगैरह और जितने भी ऑफिस बेयरर्स प्रेस क्लब के बैठे हुए हैं, उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। बाकी यहाँ बैठे हुए हमारे ख़ास दोस्त और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स में से असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रज़ाली आबिदी साहब, जिनको एक मीटिंग के लिए ले जाना पड़ा अचानक, उनको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। उनके बाकी कोलीग्स, अनवर सरपा साहब, डॉक्टर अनवर सरपा जो असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, हमारे बड़े होनहार हैं, यूसुफ साहब और बाकी ऑफिशियल्स, आप सबको खुशामदीद और शुक्रिया ये कि ये एक बहुत बढ़िया एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इसी वेन्यू पे पता नहीं कुछ है जादू सा है सर, पिछले साल भी जनवरी में ही एक इवेंट हुआ था, जनवरी दिसंबर में ही होता रहता है लगता है, लेकिन बहुत बढ़िया रहा है। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं खुद कल बदकिस्मती से इनॉग्रल इवेंट और दिन भर के सेशंस में बैठ नहीं पाया, आ नहीं पाया। मैं जमाल अफरोज साहब और हाशमी साहब को सुनना चाहता था, उनके साथ भी बड़ी इंटरेक्शन होती और कुछ सीखने को मिलता, बहुत ज़रूरी है। मीडिया वाले सर्कल में, मीडिया फ्रेटर्निटी में बहुत कुछ अब डेवलप हो रहा है, नए चीज़ें आ रही हैं, नए एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, वो सब सीखना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में हैं, मगर ये न्यूआंसेस जो है मीडिया रिलेटेड और फिल्म मेकिंग रिलेटेड और क्या क्या पता नहीं सन जिसे कहते हैं, वो सब सीखना, उनके बारे में थोड़ा समझना और थोड़ा पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करना, कंट्रीब्यूट करना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसीलिए ऐसे इवेंट्स हम चाहते हैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट लद्दाख की हर 3-4 महीनों में होता रहे, साल में 3-4 भी हो, एक्सपोजर हो, ओरिएंटेशन हो, स्किल अपग्रेडेशन हो, कुछ चीज़ें स्किल इन्हांसमेंट हो, और हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ख़ासकर हम कोशिश ये करते हैं पूरे लद्दाख में मीडिया पर्सन्स जितने भी हैं, हर एजेंसी के जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं लद्दाख में बैठ के लेकर के, उनको कुछ न किसी तौर पे कोई एक्सपोजर मिलता रहे। हम कोशिश ये भी करते रहे हैं कि हमारे मीडिया पर्सन्स को बाहर भी भेजा जाए, बाहर लद्दाख से बाहर जाके इवेंट्स कवर करें, और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स मीडिया रिलेटेड जितने भी हैं उनमें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हासिल करके आए। और यहाँ पे हमारे जो होनहार जो नए बडिंग मीडिया पर्सन्स हैं, उनको भी थोड़ी रोशनी दिखाएं या रास्ता दिखाएं। बेशक हुसैन खालू साहब के स्पीच में आपने सुना कि हमें कितनी दुश्वारियों के साथ का सामना करना पड़ता है। जो लद्दाख से बाहर जो प्रेस वाले हैं, उनके साथ उनको जो मुश्किलात फेस करने पड़ते हैं, वो तो बहुत पीछे है, कुछ नहीं है। इनको यहाँ इस हार्श सर्दी में मुश्किलात जो पैदा आती हैं, बैटरीज का, लॉजिस्टिक्स का, ट्रांसपोर्टेशन, और जाके वापस शाम को आके जल्दी स्टोरीज फाइल करना, ये क़यामत से भी कोई कम नहीं है, मगर बहुत ऊंचे पैमाने की मुश्किलात फेस करते हैं। उसके बावजूद भी आखिर में, जैसे कहते हैं शाहरुख खान ने फिल्म में कहा कि आखिर में सब ठीक हो जाता है, लेकिन कितनी साजिशें होती हैं, मौसम की साजिशें वगैरह वगैरह, सारा कुछ टोपोग्राफी का, वो सिर्फ उसका हाल सिर्फ यही जानते हैं, तो आखिर में स्टोरी फाइल हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हमारे जो मीडिया पर्सन हैं लेकर के दोनों में, इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, पर्सनल कहें, फैमिली लेवल पे कहें, तो करियर के बारे में के हवाले से कहें, तो बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है, और इसके लिए तालियां तो बनती हैं, स्टैंडिंग ओवेशन भी बनता है। लेकिन बेशक थैंक यू वेरी मच। एक आपके सामने दी जाती मिसाल है, साथ ये देखें, डिग्री कॉलेज करगिल के प्रोडक्ट है। डिग्री कॉलेज करगिल में कोई मास कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं है, EJM कॉलेज ले में मास कम्युनिकेशन का कुछ नहीं है। पता नहीं इनको कहाँ से सीख मिली, किसी ने इंस्पायर किया होगा, किसने किया था साथ साथ? सबसे पहले कौन से मीडिया पर्सन नेशनल लेवल पे दिखा था आपको, मतलब आपको ख्याल आया कि हमें इस फील्ड में जाए? नेशनल लेवल पे तो कई सारे हैं सर, लेकिन लोकल लेवल पे जब केबल नेटवर्क शुरू हुआ उस वक्त हुसैन खालू साहब थे, तो वहाँ पे और हुसैन खालू साहब से अगर हम पूछने के लिए बैठ जाएं कि उनको किसने इंस्पायर किया, तो कहानी लंबी हो जाएगी। लेकिन पता है उन्होंने भी कहीं ना कहीं से, वो भी दिल्ली में पढ़ते थे, जामिया में ही थे, लेकिन अलग ही कहानी है, उसके लिए पूरा एक दिन चाहिए। लेकिन बेशक हुसैन साहब काबिल तारीफ हैं, सैल्यूट्स टू हर एंड हैट्स ऑफ टू यू बेशक। तो खैर ऐसे ही मीडिया का जो सिलसिला शुरू हुआ है, और अभी तो
माशाल्लाह बहुत आगे चल रहा है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव लेवल पे डेवलप हो रहा है। हम हुसैन साहब, इसाक साहब और बाकी जितने भी होनहार जो मीडिया पर्सन जितने यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो, मैं पूछना ही चाहता हूँ किस मुंह से बाकी लोगों को बोलेंगे या जवान लोगों को कि आप मीडिया लाइन में आए, क्योंकि बहुत मुश्किलात हैं। रेवेन्यू या इनकम रेम्यूनरेशन की बात अगर करें उस हवाले से तो ये कहेंगे नहीं, बिल्कुल मत आना, डिस्करेज करेंगे, क्योंकि इनको खुद उस मुश्किल चैलेंज को फेस कर चुके हैं, उस मुश्किल रास्ते पे चल चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इन सब के बावजूद भी अगर कोई पैशन होता है रिपोर्टिंग का, फोटोग्राफी का और बाकी चीज़ों का, इवेंट्स कवर करना और गवर्नमेंट के सामने पेश करना, पब्लिक के सामने पेश करना, दुश्वारियाँ जितनी भी होती हैं पब्लिक की, उन सब का निचोड़ ये है कि मतलब अगर उसके बावजूद भी मतलब अगर फिर भी लोग ये कहें कि यार फिर भी आप मीडिया स्ट्रीम में आओ, मुश्किलात तो हैं, चैलेंजेस हैं, तो शायद और उससे मुतासर होकर अगर कोई मीडिया लाइन में असल में आना चाहते हैं तो काबिल तारीफ होगी, और वो उसको हम कहेंगे असल में कोई अपना पैशन जीना चाहता है, इस मस्ट बी लिविंग हिज ड्रीम या जैसे भी कहें। लेकिन इन सब के बाद ये अभी भी नए इस फील्ड में बहुत सारे नए होनहार लोग, जवान लोग आ रहे हैं इस फील्ड में और रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी में ज्वाइन करने के लिए, करके अपना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी बात है। और आप सबको मैं ये भी बता दूं कि हमारे ले करगिल दोनों में फिल्म मेकर्स बहुत अच्छे बन के उभर के आ रहे हैं। एक होनहार जवान शख्स हमारे साथ भी बैठे हैं, ज़हीर-ए-बाज़ साहब, और यहीं बैठे हैं छुपे रुस्तम है। इफ्तिखार साहब तो एक इस फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं, बहुत आगे हैं, लेकिन ज़हीर-ए-बाज़ साहब वगैरह और यावर अब्बास और कई सारे फिल्म मेकर्स खासकर करगिल के बहुत इन लोगों को इंस्पायर करते हैं, मुझे भी इंस्पायर करते हैं। इनकी स्टोरीज और इनके दिल में, दिमाग में क्या क्या चल रहा है उन्होंने पर्दे पे ला के दिखाया है हमें एक शॉर्ट फिल्म के जरिए, और बहुत बढ़िया लगा। और तो ऐसे इवेंट्स की तरह फिल्म मेकर्स के लिए भी हम कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी इनके डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी थोड़ा सा अपना योगदान दे पाएँ। और हम कोशिश यही करते हैं इन सबको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ज़रूर मुहैया करें, ताकि ये अपने स्किल्स को अपडेट कर सकें और अपने अपना जो हुनर है हमारे जरिए पब्लिक तक पहुंचा सकें। और उनकी ज़रूरत गवर्नमेंट एजेंसीज को, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स को भी चाहिए होते हैं। अगर फिल्म मेकर्स पैनल होते हैं तो डिपार्टमेंट्स अपने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह इनके जरिए बना सकते हैं डायरेक्टली इनको अप्रोच करके। तो गवर्नमेंट के स्कीम्स और डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी पब्लिक तक पहुंचाना, प्रमोट करना भी ज़रूरी है। अब फंड्स भी ठीक ठाक आ जाते हैं, तो ये सिलसिला बहुत बढ़िया चल रहा है। इसके लिए हम शुक्रिया अदा हम अपना नहीं करेंगे, फिल्म मेकर्स का करेंगे और जितने भी होनहार मीडिया पर्सन उन सब का करेंगे। मीडिया ने एक लद्दाख में एक सिलसिला शुरू किया है, इनके जरिए हमें पता चलता है तो आवाम को कितनी दुश्वारियाँ हो रही हैं, किसी को कोई इशू फेस हो रहा हो तो इनके जरिए हमारे हम तक पहुँचती है, तो फिर डिपार्टमेंट्स अपने हिसाब से उन मसलों का हल निकालने की कोशिश में जुट जाते हैं। तो हर डिपार्टमेंट के पास अब एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी के लिए भी ठीक ठाक बजट आ जाता है, तो फिर इनके सर्विसेज का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि कल और आज ये जो 2 रोज़ा का जो जर्नलिस्ट वर्कशॉप था, इसमें सब ने इतना कुछ सीखा होगा कि आगे और भी पॉजिटिव तरीके से जर्नलिज्म वाले फील्ड में चलें। मिकात हाशमी साहब और जमाल अफरोज साहब से आपने अच्छी खासी चीज़ें सीखी होंगी, इंटरेक्शन अच्छा हुआ होगा सर, और मुझे उम्मीद है आप दोनों ने भी, और इफ्तिखार साहब ने तो बेशक ठीक है, आप दोनों ने भी इनसे भी काफ़ी चीज़ें हासिल की होंगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये भी थोड़ा बहुत इनको कैसे चैलेंजेस का सामना फेस करना होता है पूरे लद्दाख में, उसमें भी आपने कुछ टिप्स वगैरह दिए होंगे। और मीडिया वाले लाइन में देखेगा ये जो सीखने का लर्निंग वाला एंगल है, जो एजुकेशन है वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि डेवलप हो रहा है। और न्यू मीडिया नाम की चीज़ एक आई भी है, यहाँ थोड़ा सा इन्फेंसी वाले स्टेज में है, जहाँ से आप लोग आए हैं वहाँ तो शायद माशाल्लाह एडवांस स्टेज पे होगा। न्यू मीडिया को रेगुलेट करने के लिए हम भी थोड़ा बहुत सोच रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ IT का भी कुछ है शायद, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का था, खास नहीं देखा कोई रेगुलेशन। IT एक्ट शायद थोड़ा बहुत लागू हो, इसमें भी कैसे हम लिंक कर सकते हैं वो हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए न्यू मीडिया जिसे कहते हैं वो अभी तक ठीक से उभर नहीं आ रहा है, भरा नहीं है लद्दाख में, लेकिन हम थोड़ा स्टडी कर रहे हैं, एग्जामिन भी हो रहा है किस तरह इनके काम को भी न्यू मीडिया वाले जितने भी लोग हैं, जो मीडिया पर्सन हैं, उनके सर्विसेज, उनके काम को, एक्टिविटीज़ को किस तरह रेगुलेट किया जाए, वो भी हमें देखना ज़रूरी होगा, लाजमी होगा।
तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हैं, जो यहाँ सारे तशरीफ फरमा है, किसी न किसी तरीके से किसी न किसी तौर पे इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया रहा है। लद्दाख एज ए यूटी जो बढ़िया वर्क किया आ रहा है और डेवलप हो रहा है, इसमें इनका योगदान बहुत ज़्यादा अहम है और अभी तक बहुत पॉजिटिव रहा है। और गवर्नमेंट की तरफ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इंकरेजमेंट बहुत मिलती है। हमारे मीडिया पर्सनस एक्रेडिटेड होते हैं, इनके जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो उनकी एम्पैनलमेंट का भी सिलसिला चलता है एनुअल लेवल पे। आजकल एक और सिलसिला चल गया है, जल्दी एम्पैनल हो जाएंगे लोग और अखबार एम्पैनल हो जाएंगे और लोग एक्रेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं बेशक। तो हम बस यही है कि द स्काई इज़ द लिमिट जैसे कहते हैं, और कोशिश यही होगी हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जितने भी स्टाफ हैं, होनहार जितने भी फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स और बाकी ऑफिशियल्स जितने हैं, उनका भी योगदान बहुत ज़्यादा रहा है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अपने ग्रोथ में, और ऊपर से हमारे मीडिया पर्सनस को जितना सपोर्ट देने की ज़रूरत थी उसके लिहाज से। और बेशक और टॉप पे सहारा हमेशा हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव काउंसलर इंजीनियर पुंसक साहब का तो हमेशा रहा ही है। बहुत इंकरेजिंग है और बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं आप। तो वो साबित अभी होगा जब वो स्पीच करेंगे, देखिएगा आप दंग रहिए। इट्स ऑलवेज अ ट्रीट टू लिसन टू हिम, और बहुत सेंसिबल बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। और डिपार्टमेंट की तरफ से मैं सर को शुक्रिया अदा भी करूँगा। कल अनफॉर्चुनेटली अटेंड नहीं कर पाए, ट्रेजरीज का कुछ था, कुछ और मसरूफियात रहीं, लेकिन आज थैंक यू सर, आप आए तशरीफ लाए और हमारे साथ रूबरू हुए। और प्रेशियस आपका टाइम बहुत कीमती है और भी कमिटमेंट्स एंगेजमेंट्स होंगे, लेकिन इन्होंने ठान ली और तशरीफ लाए है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारे इम्तियाज सर ने कहा कि हम सब उतावले रहता है सुनने के लिए हमारे ऑनरेबल ईसी इंफॉर्मेशन को, तो मैं बिना वक्त गवाए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ऑनरेबल ईसी इंफॉर्मेशन लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट कारगिल से, प्लीज आप तशरीफ लाए और अपने जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन यूटी लद्दाख इम्तियाज काचो साहब, हमारे बीच हमारे गेस्ट मेहमान और तीन रिसोर्स पर्सन्स, आपका नाम मुझे थोड़ा सा वो हो जाएगा, आपको वेलकम करते हैं करगिल में सर। हमारे असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर डॉक्टर अनवर सर का, प्रेस क्लब कारगिल के प्रेसिडेंट हुसैन खालो साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, बाकी यहाँ पे जितने हमारे प्रेस के फ्रेंड्स साहब यहाँ पे मौजूद है, सबको मेरे तरफ से जुले वसलाम। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आई एम रियली फील वेरी एक्साइटेड, क्योंकि काफ़ी सालों से आप लोगों के साथ जो है दोस्ताना रहा है। हुसैन खालो ने जब शुरू किया था ये मीडिया, जिस तरह अभी अरसाक साहब ने बताया कि जब केबल चलते थे, हम भी यही था, 2007-8 की बात है, हम भी अपने घरों में केबल लगाने के पीछे लगे रहते थे कि किस तरह हम वो करें। तब एक करगिल नंबर आता था, हफ्ते में या फोर्टनाइटली आता था, वो आते आते जो है इतना तरसता था कि उस न्यूज़पेपर कब हमारे टेबल पर पहुंचे। 3 रेडियो रखते थे हम लोग, ऑफिस में, घर में, गाड़ी में, कि करगिल का वो न्यूज़ सुने, ताकि वो 10-15 मिनट के न्यूज़ आते हैं वो छूट ना जाए। क्योंकि हमारे लिए न्यूज़ और मीडिया इतना इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लाइफ का एक पार्ट है। खासकर एक पॉलिटिशियन को, एक एडमिनिस्ट्रेटर को, एक गवर्नेंस को, आप लोगों के बगैर जो है कुछ भी नहीं चल सकते हैं, चाहे वो दुख में हो चाहे वो सुख में हो। कल एक दुखद बातें हो जिसकी वजह से हम इनॉग्रेशन सेशन पे नहीं पहुंच पाया, और आज आप लोगों के सामने हम ये कंडोलेंस पेश करते हैं हमारे फिरोज अहमद खान साहब, उसके पूरे खानदान को, क्योंकि हाजी गुलाम हसन खान साहब वो करगिल के टॉलेस्ट, वन अमंग द टॉलेस्ट लीडर ऑफ दिस कम्युनिटी ऑफ दिस रीजन लद्दाख के, 2 टाइम MP बने, 2 टाइम हमारे काउंसिल में हमारे साथ काम किया उन्होंने। तो एक मैन ऑफ प्रिंसिपल था, एक लेजेंड था करगिल के लिए, जो हम लोगों ने खोया। तो आज के इस दिन पूरे दिन मौके पे जो नाम को कंडोलेंस पेश करते हैं उनके जितने भी नियर और डियर से, तो इसकी वजह से हम कल नहीं पहुंच पाए। और जिस तरह इम्तियाज साहब ने सुना कि हम भी जो है हमारे रिसोर्स पर्सन को सुनना चाहते थे, ये पूरे कम्युनिकेशन होते हैं। जब भी किसी भी जो है एग्जीबिशंस, एक्सपोजर्स या इस तरह किस्म के वर्कशॉप में हमें जाने का मौका मिलता है, हम भी जो है बहुत कुछ आप लोगों से सीखते हैं सर। और आप लोग मुझे लगता है कि हमारे जितने यंग बटिंग जर्नलिस्ट यहाँ पे सर, अब करगिल को जो है एक करगिल का एम्बेसडर बन के जाएंगे। इन लोगों से आप लोगों ने इनका एक्सपीरियंस सुना होगा, इनका मुश्किलात तो हमारे हुसैन साहब ने भी बताया, कल भी आप लोगों को बताए होंगे। हम हमेशा यही फील करते हैं कि इनका सर्वाइवल क्या होगा। जिस तरह अभी इम्तियाज साहब ने बताया कि अगर ये किसी और फ्यूचर जनरेशन को अगर इस प्रोफेशन में आने के लिए बताए, तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये प्रोफेशन आपको कहाँ तक आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा, जिसके लिए हम सबको इसका एक चिंता रहता है, चिंता रहा है। और आगे भी जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कोशिश
कि हम किस तरीके से आप लोगों की मदद कर पाए। तो ये तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी है, काउंसिल को भी है, और जितने भी डिपार्टमेंट के साथ मसले उन सबको जो है खासकर आप लोग जैसे प्राइवेट जो मीडिया में लोग हैं उनकी चिंता जरूर रहता है। तो मुझे खुशी है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पिछले कुछ सालों से जो ना आप लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, आप लोगों को जो ना नए इस दौर में अपडेशन के लिए बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं। लास्ट ईयर में मुझे ऐसी किस्म के वर्कशॉप में आने का मौका मिला जो हमने चित्र में किया था। उस वक्त भी रिसोर्स पर्सन लाए थे, काफ़ी मतलब हमारे रिनोन्ड रिसोर्स पर्सन वहाँ पे लाए थे। इस साल फिर से आप लोगों ने किया सर, तो ये बहुत अच्छी बात है कि डिपार्टमेंट जो है ना हमेशा आप लोगों के लिए आपको अपडेट रखने के लिए, आपको फीचर उसको करने के लिए बहुत कुछ काम कर रहा है, जिसकी वजह से शायद कुछ चीज़ों में आप लोगों को इसका मदद रहेगा। हुसैन खालो साहब ने जब शुरू किया था मीडिया को, तब तो जो ना मीडिया में इतने लोग भी नहीं थे, कुछ लोग ही थे, चंद लोग थे, लेकिन फिर भी चलो उस वक्त भी इन्होंने जो ना हमेशा करगिल के ओवरऑल डेवलपमेंट में जो ना इनका बहुत एक बड़ा एक रोल रहता है। हम भी हमेशा ये तरस रहते हैं कि वो कि कब जो ना हमारे क्रिटिक हमें क्या बोले, कब हमारे काम के बारे में लोग हमारे सलाह कब करें, कब हमें अप्रिशिएट करें, उन चीज़ों का हमेशा एक वो रहता है। तो उसमें जो ना सबसे बड़ा रोल रहता है मीडिया का। कई चीज़ों में इतना एक्सेजरेट करके करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर मीडिया इन प्रिंसिपल में चले, मीडिया अपने रोल और रिस्पॉन्सिबल को नहीं समझे, तो मीडिया से खतरनाक चीज कुछ भी नहीं हो सकते है कि नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि टाइम आया था, उन्होंने बोला था कि मल्टी करोड़ स्कैम्स, तो इस तरीके से बहुत खतरनाक चीज होता है। इन चीजों की तरफ थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। और लेटेस्ट लास्ट वाला जब इसाक साहब ने हमारे एडवाइजर के साथ जो 1-to-1 वो किया, तो दैट वाज रियली अप्रिशिएबल यार, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई कुर्सी पे होता है, कोई बड़े उस पर होता है, तो हम ये झिझकते हैं, डरते हैं। हकीकत को पेश करने में किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो ये चीजें हैं, हकीकत को सामने लाना है। आखिर अल्टीमेटली जो भी जिस कुर्सी पे बैठा है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, वो पब्लिक को अकाउंटेबल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो जितने काउंसिल्स में हो, असेंबली में हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, एवरीबॉडी इज अकाउंटेबल टू द लोकल पब्लिक। तो पब्लिक को अकाउंटेबल होने के लिए जो है ना, जब तक वो पब्लिक फॉर्म में मिलाएगा, तब तक जो है ना बंदे को ये लगता है कि मैं ही ठीक कर रहा हूँ। तो इस चीजों को आगे करने के लिए जो है मीडिया की इतना जरूरत है हमें, और जो भी आपके वेलफेयर के लिए करने की जरूरत है, वो काउंसिल, वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हर कोई जो है ना आपकी उसको रिजॉल्व करने की हर कोई कोशिश करेंगे। काफी सालों के बाद आप लोगों को छोटा सा लैंड मिला है, जो हुसैन साहब ने आज भी बताया, उस दिन भी बताया। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको रिफ्लेक्ट किया है अपने प्लान में, क्योंकि प्लान जो है ना साल में एक ही बार बनता है, बार बार तो बनता ही नहीं। तो अगला साल 2025 के स्टार्टिंग में मार्च के बाद जो है ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट सेक्टर, एचडीपी, हमारे काउंसिल वगैरह हर कोई नए प्लान करने की शुरू करेंगे। तो वहाँ से आया तो ठीक है, नहीं आया तो उस दिन भी हमारे सीसी साहब ने आप लोगों को एश्योर किया है कि हम काउंसिल के प्लान में आपको उस बिल्डिंग का जो भी आप लोगों का एक वो विजन और प्रोजेक्ट है, उसको वहाँ पे लेके जो है वो फैसिलिटेट आपको करने का हम लोग कोशिश करेंगे। पहले भी जो है ना जो डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन के माध्यम से यहाँ पे जो ऑडिटोरियम हॉल के आसपास में जो कुछ थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें भी मीडिया उसको अकोमोडेट करने की कोशिश पहले भी किया था। तो मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में आप लोगों का भी इनपुट्स रहेंगे, आप लोगों का भी कुछ सोच होगा, कुछ विचार होंगे, कुछ एस्पिरेशंस होंगे, वो बराबर डिपार्टमेंट को पहुंचाता रहे, हमारे साथ भी वो पहुंचाता रहे। क्योंकि हमेशा हम तो जो है ना आप लोगों के साथ एक फ्रेंडली उसमें जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, हमेशा जो ऑफ द रिकॉर्ड में हम डिस्कस करते हैं, ऑन रिकॉर्ड में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें कोई किसी चीज़ की वो नहीं है कि हम हमेशा आप लोगों की भलाई के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट की भलाई के लिए हर कोई काम करता आया है। इतने सालों का एक सफर है, 17 years आई बीन इन कारगिल। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जो है एक इतना दोस्ताना माहौल में जो है कारगिल के लोगों की खिदमत करने के द्वारा मौका मिला। मैं अपने जिंदगी का बहुत बड़ा एक ऑनर मैं अपने आप को समझता हूँ कि राजस्थान जैसे इलाके में पैदा होकर कारगिल जैसे इलाके में काम करने का मौका मिला। अपने छोटी सी एक्सपीरियंस, छोटी सी उसमें जो है हमने काफ़ी कोशिश किया कारगिल में। जिस तरह के अभी के आपका TFC है, वो एक एग्जाम्पल है। वहाँ पे ट्रक वो हुआ करता था, ट्रक क्या कहते बनाने का एक वो हुआ करता था। आपका जो यहाँ पे अभी टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड से जो हमने दरिया को काट के जो है वहाँ से जमीन निकाल के बनाया था, उसमें हमारा एक पर्सनल कंट्रीब्यूशन है। बीइंग एन इंजीनियर जो है हमने काफ़ी चीज़ों में वो किया था। ये दरिया इसमें 2010 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्ट्रक्शन था कि दरिया के किनारे पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बने। तो हमारे यहाँ कारगिल में टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड बनाने के लिए जगह बिल्कुल नहीं था, जो बाजार के इर्द गिर्द में जो है हमें मिले।
लेकिन इस दरिया को कर सकता था। लेकिन उस वक्त जो ना काचो साहब, काचो अहमद गनी खान साहब सीसी थे, हम लोग उसमें थे, तो हमने बहुत कोशिश किया था इसमें बस स्टैंड बनाने का। लेकिन तब उस वक्त के डीसी और उस वक्त के बहुत सारे लोगों ने काफी वो किया, हमें सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि दरिया को काट के हम ये नहीं बना सकते, बस स्टैंड नहीं बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने हमें कुछ पैसे दिए थे। अल्टीमेटली मैंने एक मीटिंग में ये बताया, सर हम बस स्टैंड को नाम देने की जरूरत नहीं है, हम ये बताएंगे कि नेशनल हाईवे फ्लड की वजह से खतरे में है, तो इकबाल ब्रिज से लेकर इस्लामिक स्कूल के चौक तक हमें जो आरसीसी बंद लगाने की जरूरत है। हम बंद में कन्वर्ट करके वो लगाएंगे ताकि जो जमीन रिक्लेम हो जाएगा उसमें हम टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड बनाएंगे। कभी कभी छोटा सा चीज जो है इस तरह काम करता है। तो ऐसे ऐसे करके हमारा टाइम निकला। तो मीडिया, जिस तरह आप लोगों ने बताया कि मीडिया, हम जो है ना, हम एक एज ए काउंसलर्स जब हम गाँव में जाते हैं, हमें सबसे पहले जो है ना ड्राइवर, दूसरा हम मीडिया को ढूंढते हैं। अगर जब मीडिया नहीं मिलता है, हमको खुद को फोटो लेना पड़ता है, खुद को लिखना पड़ता है, फिर भेजना पड़ता है तो उसके बगैर तो जो हमारा काम किया है पब्लिक के डोमेन में आएगा नहीं। तो हमारे मोबाइल में भी अभी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट का VIP और जो आप न्यूज भेजते हैं वो सब हमारे पास है। इन्फॉर्मेशन के क्या कहते हैं, रिपोर्टर का काम भी हम करते हैं। सारा कुछ जिस तरह आप लोगों ने अभी हुसैन साहब ने बताया, हमें कैमरा भी खुद करना पड़ता है, लिखना भी खुद पढ़ना पड़ता है, भेजना भी पड़ता है, बहुत सारी मल्टीटास्क आप लोगों को करना पड़ता है, वो हम रियलाइज करते हैं। और इस आज के इस मौके पे मैं आप सब लोगों को सैल्यूट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपने बहुत सारी चीज को कंप्रोमाइज करके आप लोग इस काम को आगे ले रहे हैं, वो हम जानते हैं, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल तो नहीं है। आप लोगों को अच्छा खासा रिनोमिनेशन और वेजेस और बाकी सैलरी मिलना चाहिए था, वो अब हम लोगों को नहीं मिलते हैं। तो हमें मालूम नहीं है कि आप अपने प्राइवेट उसको कैसे आप लोग मैनेज करते हैं और इस प्रोफेशन को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो हम सब आप लोगों को सैल्यूट करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन, जिस तरह एक गवर्नेंस और गवर्नमेंट के सिस्टम में जो है ना, आप लोग जिस तरह लोग बोलते हैं हम लोग थर्ड पिलर ऑफ द या फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, हम तो बोलते हैं सेकंड पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। फर्स्ट पिलर गवर्नमेंट है, सेकंड पिलर मीडिया है। मीडिया के ऊपर कुछ भी नहीं चल सकते। तो आज के इस मौके पर हम हमारे रिसोर्स पर्सन जो आप लोग दिल्ली से आए हैं, बाकी बाहर से, हम सब आपको सैल्यूट करते हैं सर। हमारे काउंसिल की ओर से आप लोगों को अप्रिशिएशन से कि जब भी हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने आप लोगों को रिव्यू किया होगा, दावत दिया होगा और आप लोग यहाँ करगिल जैसे इस इलाके में आए हैं और आपने बताया, हमारे दोस्त साहब ने बताया कि स्विट्जरलैंड से भी ये कम नहीं है। बिल्कुल हकीकत में है। करगिल जो है ना, समर में कुछ और विंटर में कुछ और है कि नहीं। हमें तो घर की मुर्गी थाल की बराबर जैसा लगता है ना, क्योंकि यहाँ अभी बर्फ पड़ा हुआ है। वैसे में मैं मनाली गया था, मैं एक होटल में बैठा हुआ था, वहाँ इतने टूरिस्ट थे, 65 लोग थे उस कमरे में, उस होटल में। 65 मतलब 32 कमरा तो बुकिंग था ना, एक उसमें से मैं भी था। जो वो लोग आते थे, होटल के मालिक को ये पूछता था कि हमें बर्फ देखने को मिलेगा, हमें बर्फ देखने को मिलेगा। मैं तो सोचता था बर्फ ना पड़े, मुझे रास्ता रहना था दूसरे दिन। वो लोग तरसते थे बर्फ देखने के लिए। फिर मुझे रियलाइज हो गया कुदरत का ये जो है ना, हमें उसको वो नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको नाशुक्र नहीं करना चाहिए। हम सब एक ऐसे इलाके में बेशक पैदा हुआ है, इसका अपना एक खसूसियत है, ऐसा एक खासियत है। और जब तक आप उस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को आप चेरिश करेंगे तो आपका अच्छा है, नहीं तो आपको जहन्नम लगेगा। तो साहब की नजर ये स्विट्जरलैंड है और हमें भी स्विट्जरलैंड की तरह मान के जो है जिंदगी बसर करना है। सबको थैंक यू। Thank you for being here on day 2 of this workshop. मेरे 2 से 3 दिन जो है बहुत ही अमेजिंग चल रहे हैं और मुझे जितने लोगों से मुलाकात हो रही है, मैं उतने लोगों से जो है कम से कम हजार सवाल पूछ रहा हूँ हर बात को लेकर। क्यूरियोसिटी कह सकते हैं, कुछ इग्नोरेंस भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितना मैं इस जगह के बारे में जितना जान सकूं। देखिए, किताबों से सब कुछ नहीं मिलता है और इंटरनेट से सब कुछ नहीं मिलता है, तो इंटरपर्सनल स्किल्स भी बहुत जरूरी है। सो इफ्तिखार भाई हो तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अनवर भाई के तो मैं कहानी खा गया, हर चीज रास्ते में कि यहाँ पर क्या है, कैसे है, घर कैसे बनता है, पानी कैसे मिल रहा है, ये कैसे है, चश्मा कहाँ पर है, लाइफ स्टॉक से कैसे हो रहा है। तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में है और everybody has been so much appreciative of the fact that I want to know about this place more and want to understand about this place. बताना चाहेंगे थोड़ा इसके बारे में? माइक लीजिए प्लीज, मैं कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, ठीक है? सॉरी, एक बार कीजिए। सबसे पहले मेरा नाम मूसा कुमेरी है सर। इससे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज के साथ एज कैमरा में 5 साल काम किया सर। उसके बाद मैंने बीच में लेफ्ट किया और उस दौरान मुझे मौका मिला, जब ये यात्रा जो है हिमाचल से जा रहे थे, तो उस वक्त में फ्री था तो कवर करने के लिए गया, हिमाचल में पहुंचा। सबसे पहले तो मुझे प्लस पॉइंट वहाँ पे ये लगा कि हिमाचल में फिक्स शेड्यूल है वहाँ पे। तो उधर में जब उधर के मुकामी लोगों से मिला और उनके बीच जब गुल मिला, उनको कितना पता है शेड्यूल के बारे में वो जानने को मिला।
फिर उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे चीज जहाँ पे फैक्ट्रीज है काफी नुकसान पहुंचा है हिमाचल में उनके वजह से फैक्ट्रीज पॉल्यूशन की वजह से लगा दीजिए। तो दूसरा सोल्यूशन मतलब अनटेक्निकल, बट ये आपकी सोशल स्किल पे डिपेंड करता है कि आपको पूरा ही एरिया चरागाह हो जाए, रोशनी उतनी भर की मिल जाएगी जितना आपको शुरू हो जाए। तो फिलहाल तो मैं ये दे सकता हूँ, बाकी इंशाल्लाह मैं RFD करके आपको बता सकता हूँ। तो मेरी नॉलेज थोड़ी सी कम है, इसलिए मुझे थोड़ा और अभी पढ़ना है, तो मैं आपको बता। Thank you so much, sir, for sharing your wealth of wisdom with us. अब हमारा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। तो सबसे पहले डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल इंजीनियर कुलसुम ताशी सर से कि आप हमारे रिसोर्स पर्सन मोहम्मद निहात हाशमी को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन और मोमेंटो पेश करें। थैंक यू सो मच सर। अब मैं जॉइंट डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन जमाल अफरोज खान सर को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन और मोमेंटो पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद में एक बार फिर इसी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे तीसरे रिसोर्स पर्सन इफ्तिखार हुसैन सर को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन और मोमेंटो पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनके लिए भी सर्टिफिकेट है, तो मैं बारी बारी यहाँ से नाम अनाउंस करूंगी, आप सामने आ जाइए। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन खालू, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब कारगिल लद्दाख। Thank you so much. Sheikh Hashim Nazvi, Vice of Ladakh, Sheikh Hashim Nazvi. इनके बाद इब्राहिम फिरदौस तैयार रहिए। इब्राहिम फिरदौस इनके बाद गुलाम मोहम्मद नूरी गुलिस्तान से। अगर हमारे रिसोर्स पर्सन जमाल सर रिफाइन कंजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट। इनायत अली शर्दोबा, रीजनल आकाशवाणी कारगिल। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इफ्तिखार सर से कि आप हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मोहम्मद इसाक को सर्टिफिकेट और पेश करें। क्या बताऊँ नासिर हुसैन जैदी SCB लद्दाख। इनके बाद तैयार रहिए मोहम्मद मूसा, लद्दाख एक्सप्रेस। मैं जमाल से गुजारिश करूंगी कि आप मोहम्मद मूसा तुमेली को सर्टिफिकेट पेश करें। मोहम्मद हबीब। मैं ऑनरेबल इसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेक्स्ट मोहम्मद मुमताज हुसैन। मुमताज हुसैन के बाद फिरोज खान साहिल। फिरोज खान साहिल। सईद काजिम। सैयद काजिम। मोहम्मद बाकर गजम FM से। नेक्स्ट है मोहम्मद बाकर। उनके बाद तैयार रखिए महबूब अली लद्दाख टाइम्स से। महबूब अली।
महबूब अली के बाद इलियास अहमद, उनके बाद है जहीर अब्बास दर्दिस्तानी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे मिकाल सर से कि आप प्लीज जहीर अब्बास दर्दिस्तानी को सर्टिफिकेट पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर डॉक्टर अनवर सरकार के आप स्टेज पे तशरीफ लाए और वर्ड ऑफ थैंक्स पेश करें। मोहतरम एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए इत्तलात व राबिता यामना लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल शागिद इंजीनियर मनसूख कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ लाए। और आपको शुक्रिया कि आप हर वक्त जब भी इंफॉर्मेशन का कोई भी काम हो और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप पेश रहते हैं और आप हमारे अप्रिसिएशन करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव पे सद एहतराम ज्वाइंट डायरेक्टर बराए इत्तलात जनाब इम्तियाज काचू JKS, आप का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर वक्त जर्नलिस्ट की वर्कशॉप्स के लिए, जर्नलिस्ट को सपोर्ट करने के लिए हमेशा आप पेश रहते हैं। और मैं फख्र के साथ आज ये कह सकता हूँ कि कई सालों से ये वर्कशॉप जो है हम करते आ रहे हैं और इस साल का ये दूसरा वर्कशॉप है जो हम कर पाए, तो इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मीटिंग की वजह से हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब थे उनको लेह जाना पड़ा, रज़ाली आबिदी था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश लगा के इस वर्कशॉप को कामयाब करने में आपकी कोशिश की। इस वर्कशॉप के रिसोर्स पर्सन जमाल अफरोज खान साहब, आप इतनी दूर से और इतनी शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारी दावत को कबूल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वर्कशॉप के दूसरे रिसोर्स पर्सन मोहम्मद मिकात हाशमी साहब, आपने भी बहुत कोशिश किया और यहाँ पे आए और आपने बहुत अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन पेश किया, उसके लिए भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हमारे वर्कशॉप के तीसरे रिसोर्स पर्सन इफ्तिखार हुसैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त निकाल के यहाँ पे आए। प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हुसैन खालू साहब का और सारे मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पे हैं सईद हाशिम साहब, इब्राहिम फिरदौस साहब, इनायत अली ऑल इंडिया रेडियो से, और दूसरे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, नासिर जैदी साहब, मंसूर साहब, आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑल इंडिया रेडियो के दूसरे स्टाफ जो यहाँ पे आए उन सबका शुक्रिया, दूरदर्शन के स्टाफ का शुक्रिया, और आखिर में हमारे डिपार्टमेंट के सबसे पहले कायूसफ का शुक्रिया कि आपने पूरी कोशिश लगा के कई दिन आप इसमें लगे रहे और इस वर्कशॉप को कामयाब करने में आपने कोशिश की। बाकी हमारे PAS ऑपरेटर्स, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरामैन, सारे आप सबका शुक्रिया, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, सबकी मेहनत से और सबकी कोशिशों से ये वर्कशॉप कामयाब हुआ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है किसी दूसरे ऐसे कामयाब वर्कशॉप में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो फिर से एक बार स्वागत है सभी नाज़रीन को, कारगिल टुडे व्यूअर्स को। आप लोगों को बताते चलूँ कि इस समय हमारी टीम ठीक द कारगिल होटल में हमारी टीम मौजूद है, जहां स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप फॉर जर्नलिस्ट जिसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं DIPR कारगिल, जिसमें आप लोगों को बताते चलूँ कि काफ़ी तादाद में प्रेस क्लब मेंबर्स, नॉन प्रेस क्लब और साथ ही साथ एग्रीडेटेड और नॉन एग्रीडेटेड जर्नलिस्ट के साथ साथ DIPR कारगिल के स्टाफ्स ने भी बेहतरीन अंदाज में इस फ्रूटफुल वर्कशॉप। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि इस वर्कशॉप में जो 2 की स्पीकर्स है उन्हें भी इन्वाइट की गई। मीकत हाशमी साहब अभी मेरे साथ मौजूद है, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मैनेजर है और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर है BP न्यूज़ के, और साथ ही साथ जमाल अफरोज खान साहब जो सिनेमाटोग्राफर और फिल्म मेकर है आज तक के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, और पूरा आपको स्वागत करते सर पूरे प्रेस ऑन बिहाफ ऑफ प्रेस क्लब। इतने ठंड के बावजूद भी आप यहाँ आए और हमारे जर्नलिस्ट का आपने बेहतरीन अंदाज में फ्रूटफुल 2 रोज़ा वर्कशॉप रखा। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन शॉट और साथ ही साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा सर इस 1-2 दिन में?
सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक DIPR एंड एवरीबडी हु केम ड्यूरिंग दिस हार्श विंटर्स, जो कि मुझे समझ में आ रहा है कि विंटर्स इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस प्लेस। तो सबसे पहले तो सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने वक्त निकाला अपने प्रोफेशनल टाइम से, बिकॉज टुडे इट्स ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इट्स अ वर्किंग डे। सबने अपना वक्त निकाला बस ये सोच के कि यहाँ पे वर्कशॉप से कुछ उसका फ़ायदा होगा और उसको और काम को अपने बेहतरी तौर पर करेंगे। जहाँ तक बात रही मेरी, तो मैं एक डिजिटल जर्नलिस्ट हूँ और मैंने अपना करियर ऑल इंडिया रेडियो से शुरू किया था। ऑल इंडिया रेडियो में जनरल न्यूज़ रूम में 4 साल 9 महीने लगभग मैंने दिए। उसके बाद मैंने डिजिटल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, जिसमें मैंने टाइम्स नाउ, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद मैंने नेटवर्क 18 और उसके बाद बाइट डांस जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, और उसके बाद में अभी ABP न्यूज़ के साथ इंग्लिश जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर काफ़ी लंबे वक्त से हूँ। और साथ साथ मैंने लास्ट ईयर प्रीमियम का काम स्टार्ट किया, मतलब बेसिकली जो हमने डिस्कस भी किया कि कैसे ऑडियंस और मेंबरशिप बढ़ाए, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, तो उस पे मैंने काम किया। तो मेरा एक्सपर्टीज एडिटोरियल के साथ साथ थोड़ा सा बिजनेस का भी है, और मैंने यही कोशिश की कि अपने 2 दिनों में जो भी बिजनेस प्लस जो एडिटोरियल बातें हैं वो वहाँ पे लोगों को मैं बता सकूं, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि अच्छा दीज आर द वेज टू एक्सप्लोर द अदर एरियाज ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस 2 रोज़ा वर्कशॉप में आपने बेहतरीन अंदाज में इंटरेक्ट भी आपने किए से हमारे लोकल जर्नलिस्ट में, उनमें क्या पोटेंशियल आपको देखने को मिला, और साथ ही साथ आप इस 2 रोज़ा कारगिल दौरे के दौरान आपने कारगिल भी घूमे, मेन प्लेसेस आप सुरु वैली घूमे, बॉर्डर एरियाज आप घूमे, क्या जर्नलिस्ट में पोटेंशियल दिख रहे, और कारगिल में बिलखुसूस अभी लेह के लद्दाख में तो कारगिल बेशक आते हैं सर, बट टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करें तो थोड़ा कारगिल पीछे है सर। वार के बाद थोड़ा बहुत कारगिल आप आने लगे हैं मैप में 1990 में, बट इतना भी प्रमोट नहीं है बनिस्बत लेह। क्या कारगिल में पोटेंशियल लगा एज ए पॉइंट ऑफ टूरिज्म, और लोकल जर्नलिस्ट में आपको क्या पोटेंशियल लगा उनको आगे उभरने का? सबसे पहले तो पोटेंशियल बहुत ही अंडररेट करना होगा यहाँ पर लोगों को, बिकॉज दे आर बियॉन्ड पोटेंशियल। रीजन बीइंग, देखिए जैसे कहते हैं ना कि जो जंगजू होता है उसको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी हार्श चीजों और रियलिटीज को उसको झेल कर आगे बढ़ा होता है। तो कंडीशन इज नॉट एन इश्यू फॉर यू गाइस। ठीक है, आप लोगों को पता है कि कितनी सख्त चीजें हो सकती हैं, आपको बर्दाश्त करने की आदत है। पोटेंशियल तो आपका वहीं पर रीच हो चुका है। नाउ इट कम्स टू वर्क एथिक्स। हो सकता है एक्सपोजर टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इज लिमिटेड हियर, इसकी वजह से लोगों को चीजें नहीं पता है। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर जैसे DIPR ऐसे मल्टीपल वर्कशॉप्स कंडक्ट करवा रहा है, वो चीजें भी धीरे धीरे उनको इरेज होता रहेगा। यानी उनको जब एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, उनको समझ में आएगा कि ये टूल्स मेजर न्यूज हाउसेस भी यूज कर रहे हैं, तब दे कैन मूव फॉरवर्ड अहेड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट एंड कारगिल मैटर, तो उनको अपस्किल करना है बस। यहाँ पे लोगों को जर्नलिज्म के बारे में सब कुछ पता है, उन्हें पता है कवरेज कैसे देनी है। अब देखिए यहाँ पर इलाके के हिसाब से अगर देखा जाए 1.5 लाख लोग हैं, और यहाँ के अपनी इश्यूज हैं जो कि हमारे नॉर्मल जनरल न्यूज सेंस में हाइपर लोकल बोला जाता है। तो अब जब यहाँ के मुद्दे यहीं पर के हैं, बहुत मखसूस हैं इस एरिया में, तो उनको उसी तरीके से उठाने की जरूरत भी है। इट इज जस्ट द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग हैज टू बी डिफरेंट। अब लोग कसीदे पढ़ते हैं, ठीक है, नाउ अब आप कहेंगे कि मैं कसीदा को जर्नलिज्म में कैसे लाऊं, तो दैट्स एन आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। अ जर्नलिस्ट कैन एम्बेड, जैसे अगर कोई बताना चाहे कि फला जो लोग हैं उनकी जो कसीदे का अंदाज है वो बहुत बेहतर है, वो सिर्फ ये ऐसा नहीं है, उसी तरीके से मरसिये भी होते हैं। ठीक है, तो मरसी में यहाँ पर भी अपने लोकल भी तो बहुत सारे लोग हैं जिन मरसियों के लिए फेमस हो। ठीक है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग इट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ, तो ये भी जर्नलिज्म का एक पोर्शन ही है, और ये वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू दिस एरिया है। नाउ दे जस्ट हैव टू रीइन्वेंट देयर आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। दे नो व्हाट टू डू। अपस्किल ऐसे ही मल्टीपल वर्कशॉप से इंशाल्लाह वो होते रहेंगे, और जब वो अपस्किल होंगे वो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग में वो बढ़ते चले जाएंगे। टूरिज्म, जब हम टूरिज्म की अगर हम बात करें तो आप ये जान लें कि जो कि मैंने अभी तक कारगिल को सिर्फ सुना था। जी, तो मुझे कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पर लाइफ इज एनी डिफरेंट। मैंने अपने इंटरेक्शन में कल ये भी बोला था कि ये मेरा अजम्पशन था कि हो सकता है इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं हो, है ना, हॉट वाटर का इशू हो, और मैं अपने हिसाब से उसी हिसाब से मैं तैयारी करके भी लाया था। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कोई इशू नहीं है, जबकि अभी ऑलमोस्ट वी आर नियरिंग टू पीक विंटर एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल हियर। तो सबसे पहले तो ये जो भी हमारे प्रेजुडिस हैं, है ना, और जो स्टीरियोटाइप्स हैं, तो ये स्टीरियोटाइप को हटाने का काम जर्नलिस्ट ही करेंगे।
अभी क्या है कि हाइपर लोकल इश्यूज पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया अभी, उसको आप यूज करें इंटरैक्टिव बनाने के लिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये भी चीजें हैं। मतलब अब टूरिज्म सिर्फ मतलब कारगिल वॉर और इन सब जगहों के लिए, मतलब जैसे कारगिल सुनते सबसे पहले वॉर मेमोरियल ज़हन में आता है, बट दिस इज ऑल्सो एन एरिया, सुरू वैली इज ऑल्सो एन एरिया, देयर आर रिलीजियस टूरिज्म एज वेल। जैसे फॉर एग्जांपल बुद्ध सर्किट है ना, जैसे बनारस में अपना एक सर्किट है, तो कारगिल के भी लोग यहाँ पर एक सर्किट बना सकते हैं रिलीजियस बेसिस पर ही। यहाँ पे बहुत सारे इमामबाड़ मॉन्यूमेंट्स हैं, हाँ, और उसका एक अपना लोकल where you can tell them that these are the 5 places to visit when you are in Kargil beyond just the मतलब वो जो द्रास में जो है, जो एरिया है। सो दिस इज व्हाट आई फील कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आप लोगों को भी थोड़ा बहुत लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ वॉर ही नहीं है, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। बिल्कुल। मेनली आप महारत हासिल करते हो सर, आप एक्सपर्ट हो डिजिटल मीडिया में, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को मुझे लगता है सर आज के डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया को अब इतना लोग पसंद नहीं कर रहे जितना आप सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया को आप लोग पसंद कर रहे हैं। अब डिजिटल मीडिया में खत्ते लद्दाख में तो बहुत सारे एडवाइजरीज और SOPs है हमारे लिए। क्या डिजिटल मीडिया नॉट लाइक फुल फ्लेश लाइक मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया क्या बाकी चैनलों की तरह इन्वेस्टिगेटिव कुछ ऐसे भी इश्यूज होते हैं सब जो बड़ा सेंसिटिव होता है, उससे बिल्कुल लॉ को याद रख के हमें एक स्टोरीज करना होते हैं, रिपोर्ट्स करने होते हैं, किस तरह करने से थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं। अभी मेरे साथ जितने भी मेरे कलीग्स हैं मोस्टली दे आर फ्रॉम सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। अब देखिए जो SOP की जो एक खास बात है ना, अब मैंने कल ये भी एक पॉइंट रखा था, डिजिटल मीडिया इतना ज्यादा इवॉल्व हो रहा है ना एवरीडे में कि हो सकता है कि आज का जो हमारा SOP हो सकता है कल खारिज हो जाए, या हो सकता है कि 6 महीने बाद खारिज हो जाए। तो अगर जहां तक SOP की बात की जाए, वो कलेक्टिवली कोई आप पर इम्पोज नहीं कर सकता। इम्पोज मतलब ये है कि जैसे अगर हमारा एक टेम्पलेट है, वर्किंग एक वो है, वो टेम्पलेट हो सकता है आपके लिए वर्क ना करे। अगेन जैसे आपने बोला कि मेन स्ट्रीम लोग यहाँ पसंद नहीं कर रहे, उसका रीजन क्या हो सकता है? एक सबसे पहली वाहिद वजह हो सकता है उनको ये फील किया जा रहा हो कि यहाँ के लोगों को एलिनेट कर दिया गया है। जब कुछ बहुत हंगामी कैफियत होगी तभी बात की जाएगी, लेकिन कारगिल में बहुत कुछ और भी है ना बात करने के लिए। इसी वजह से लोगों का प्रेफरेंस हाइपर लोकल न्यूज की तरह, यानी जो हमारे यहाँ के लोकल पब्लिशर्स हैं उनकी तरफ गया, एंड दिस हैज गॉन बियॉन्ड दी न्यूज़पेपर एस्पेक्ट। मतलब पहले क्या था कि लोग सुबह उठ के अखबार पढ़ रहे हैं, तो अब डिजिटल में क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लेकिन इसमें भी एक चैलेंज है, और इस चैलेंज को समझना यहाँ पे लोकल जर्नलिस्ट का बहुत जरूरी है। चैलेंज ये है कि जो हमारे ज़ईफ हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, जिन्होंने बहुत एक वक्त गुजारा है इस इलाके में, वो हो सकता है फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर अभी ना बने, या हो सकता है वो स्मार्टफोन से कंफर्टेबल ना हो, तो उन्हें आज भी टीवी ही ऑन करके देखना पड़े। अब प्रॉब्लम ये है कि वो टीवी पे देखें नहीं, तो यहाँ पर इस तरीके की लिटरेसी की उनको ये चलाना सिखा दिया जाए कि आपको यूट्यूब चैनल कैसे करना है और कारगिल टुडे का चैनल कैसे खोलना है, उनको सब्सक्राइब करवा देना है, उनको ज्वाइन करवा देना है। क्यों? वो तो टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड है। नई जनरेशन तो सब कुछ पता है, क्योंकि आपके जो सीरियस हैवी न्यूज कंज्यूमर है, न्यूज कंज्यूमर की बात करें, वो एक डिफरेंट ही जनरेशन है जो अखबार पर अभी भी बहुत ज्यादा एतमाद रखती है। उनको लगता है कि जब तक अखबार नहीं पढ़ा तो खबर नहीं जानी, और टीवी में भी अब उनके पास ऑप्शन वही है, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है ना लोकल, लेकिन उनको पता नहीं कैसे करना है। तो आपको उनके जो स्मार्ट टीवीज अगर CTVs हैं, तो वहाँ आपको न किसी को, उनके बच्चों को, उनके किसी को बोलना पड़ेगा कि अपने दादा को, अपने वालिद साहब को, किसी को भी ये चैनल हमारा ना सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि उनको डेली खबर यहाँ से जानने को मिलेगी। तो ये हाइपर लोकल का एक सोल्यूशन हो सकता है, ये मेरी नजर में ऐसा करना चाहिए, क्योंकि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे जैसे होती रहती है, तो जो फर्दर जनरेशन होती है उसके लिए वो चीज थोड़ा सा ऑब्सोलीट है। उनको लगने लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, क्या सोशल मीडिया, क्या फेसबुक। तो उनको थोड़ा सा आपको रूबरू करवाना पड़ेगा, उनको हो सकता है कि आपको हैंड होल्ड करके गाइड करना पड़े कि ये मेरा चैनल है, इसमें मैं खबर बताता हूँ। हो सकता है उनको पता ना हो सकता है नाम सुना हो, लेकिन उनको पता नहीं है कि फेसबुक पेज पे कैसे जाए, फेसबुक उनके पास होगा नहीं। तो यूट्यूब हो सकता है उनके फोन में, क्योंकि पहले से प्री लोडेड हो, तो यूट्यूब पे जा सकते हैं। तो ऐसे से उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और क्योंकि यहाँ एक बहुत क्लोज निट कम्युनिटी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सबको जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ सब सबसे घुले मिले हैं। एक यहाँ पर एक जानिए, मतलब लोग चाहते हैं कि हाँ, मतलब किसी को कोई परेशानी किसी तरीके से, रास्ते में ट्रैफिक अगर लग रहा है तो कोई भी खड़ा होकर जो है गाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो बस वही चीज जर्नलिज्म में भी लानी है। आपको लोगों को बोलना है कि भाई
अगर हम ही लोग यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर कौन सब्सक्राइब करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते बस आखिरी सवाल होगा सर, ब्रीफ में हमारे खत्ते लद्दाख के अवाम के साथ साथ कारगिल डिस्ट्रिक्ट लेह डिस्ट्रिक्ट और हमारे लोकल मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए एज ए स्पेशल रिसोर्स पर्सन आपकी तरफ से पैगाम, एक मैसेज, उसके साथ इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम करने के लिए। जी मेरा पैगाम बस इतना सही है कि आप लोग जो ये काम कर रहे हैं और जो आपका जो विजन है उस विजन पर ना हमेशा क्लियर रहना है। जैसे अभी बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं, you have to make sure that you're not clouded by them because your whatever your original agenda to do this kind of journalism is, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि लोगों को खबर हमें पहुंचानी है, बताना है, तो कीप दैट एजेंडा वेरी क्लियर। और बाकी जो जो अपस्किल करने की कोशिश जहाँ पर है, आप कोशिश करें कि उसको एक्सप्लोर करते रहें और वहां से आप चीजों को बाकी एवरीबडी इज टोटली ऑन द राइट ट्रैक एंड एज यू राइटली सेड दैट कारगिल नीड्स इट्स ओन वॉइस। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी यहाँ के लोगों को खुद समझ में आएगा और अपने आप ही वो वॉइस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मीकत हाशमी साहब स्पेशल रिसोर्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए थे, 2 रोज़ा वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे DIPR करगिल, बेहतरीन अंदाज में और जर्नलिज्म को लेकर बिलखुसूस डिजिटल मीडिया को लेकर ब्रीफ हमारे दर्शकों तक, हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश करेंगे बराबर आज के इस कंक्लूजन ब्रेक के हवाले से तस्वीरें जो है लगातार आप लोगों तक पहुँचे, आप बने रहे हमारे बराबर तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। हकीमा बानो अली हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, काफ़ी रिनोड व्लॉगर भी है, यूट्यूबर भी और साथ ही साथ असिस्टेंट कैमरामैन भी है DIPR करगिल में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे आप ये 2 रोज़ा स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप को लेके, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या आपको सीखने को? शुक्रिया काका हुसैन। जैसे कि आपने कहा कि हम DIPR में एज एन असिस्टेंट कैमरा पर्सन काम कर रहे, तो जब से हमने ऑफिस ज्वाइन किया था तो हमारा इस कोई ट्रेनिंग हुआ नहीं था, क्योंकि हमने हाल ही में ज्वाइन किया था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कोई वर्कशॉप हो जिससे हमारे लिए लाइक बेनिफिशियल हो इस फील्ड में काम करने के लिए। सो आज ये जो दो दिन का स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप हमारे ऑफिस की तरफ से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही अच्छा रहा। इसमें एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हमें गेन करने को मिले, क्योंकि बहुत ही होनहार हमारे यहाँ पर रिसोर्स पर्सन्स आए हुए थे ABP न्यूज़ से और आज तक से, मीकात हाशमी सर और जमाल अफरोज सर। तो उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से, एंड आज के डिजिटल एरा में हमें डिजिटल जर्नलिज्म के बारे में कितना इल्म होना चाहिए और आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे करना है, उन सब के बारे में हमें बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पर सिखाया। तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड बिसाइड्स हमारे यहाँ के हिसन अफसाल का इफ्तिखार हुसैन भी यहाँ पर एज रिसोर्स पर्सन थे। वो बहुत ही जाने माने यहाँ के फिल्म मेकर है, फोटोग्राफर है। उनकी तस्वीरें हम सिर्फ देखते रहते थे फेसबुक वगैरह पे, लेकिन आज पर्सनली उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, बहुत कुछ हमें इनसे सीखने को मिला। तो बस लास्ट में बस आखिरी सवाल होगा ऑर्गेनाइजर का, यानी कि बिलखुसूस DIPR का, किस तरह शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि आपने भी फरमाया कि इनकी वजह से बेहतरीन फ्रूटफुल वर्कशॉप जो है हमें देखने। जी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे जॉइंट डायरेक्टर, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर का, क्योंकि ये जो वर्कशॉप है ये हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं और इस साल भी उन्होंने किया है वर्कशॉप स्किल डेवलपमेंट का। और ये न सिर्फ हमारे ऑफिस के लोगों के लिए किया, बल्कि हमारे कारगिल में जितने भी मीडिया फील्ड से बिलोंग करते, चाहे प्रिंट मीडिया से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस भी मीडिया आउटलेट से बिलोंग करते, उन सब के लिए ये उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उनका कि और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आइंदा भी ऐसे वर्कशॉप्स आप ऑर्गेनाइज करें, ताकि हम अपडेटेड रहे, जो न्यू ट्रेंड्स रहते हैं या जो भी हमारे यहाँ पर विद टाइम चेंजेस आते हैं, उन सब के बारे में हमें आगाही रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, मेरे साथ हकीमा बानो हमारे साथ जुड़े हुए थे, असिस्टेंट कैमरामैन है DIPR करगिल के। अपना एक्सपीरियंस जो है 2 रोज़ा स्किल्स डेवलपमेंट वर्कशॉप को लेकर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे थे, आप बने रहे। तो दर्शकों, लगातार बराबर तस्वीरें जो है स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप के हवाले से 2 रोज़ा जो ऑर्गेनाइज कर रहे DIPR करगिल, और इससे पहले भी मैंने अपने ख़ास रिसोर्स पर्सन मीकत हाशमी के एक्सपीरियंस भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। अभी मेरे साथ जमाल अफरोज़ खान साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, सिनेमेटोग्राफर और फिल्म मेकर भी है, हिंदुस्तान के नंबर 1 न्यूज़ चैनल आज तक के साथ भी जुड़े हुए हैं। फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से एक बार तमाम क्लब मेंबर्स की जानिब से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग इतने टफ कोल्ड वेदर में भी आप यहाँ आए और हमारे स्थानीय लोकल जर्नलिस्ट को आप लोगों ने 2 रोज़ा बेहतरीन एक फ्रूटफुल यहाँ वर्कशॉप की गई। पहला सवाल यही होगा सर कि इस 2 रोज़ा वर्कशॉप में क्या क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या पोटेंशियल जो है हमारे स्थानीय लोकल जर्नलिस्ट में आपको देखने को?
जी माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा एंड फ्रूटफुल इवेंट रहा हम लोगों के लिए। और हम लोग जितना भी शॉर्ट टर्म में हम लोग बता सकते थे उन्होंने बताया। और ख़ास बात हमको ये लगी कि बहुत जगह ऐसा होता है कि आप लोग आ जाते हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, बट यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन दोनों तरफ से था और शौक़ से लोग इसमें हिस्सा ले रहे थे और उनको काफ़ी, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी फ़ायदा होगा और आगे चल के। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें और वक्त की ज़रूरत है। जैसे हम लोग कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो कैमरा जो है वो आप एक कमरे में बैठ कर नहीं सिखा सकते, उसके लिए आपको बाहर जाना होगा, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करानी पड़ेंगी। कुछ मैंने एक असाइनमेंट कल, जैसे आपको पता होगा, मैंने दिया था कुछ चीज़ें, क्योंकि हम लोग एज ए जर्नलिस्ट जो है ना, हम कैमरे को ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, उसमें हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें नहीं करते हैं। और उसकी दो वजह हैं जो जायज़ भी हैं कि जर्नलिस्ट के पास उतना वक्त नहीं होता, वो सिर्फ भागता ही रहता है अपनी स्टोरी के पीछे। बट अगर जर्नलिस्ट कैमरे को, स्टोरी को एक साथ अलाइन कर ले, जितना उसका काबू लिखने में है उतना उसका काबू अगर कैमरे में भी हो जाए तो सोने पे सुहागा है। सर, आप इस 2 रोज़ा स्थानीय जर्नलिस्ट के साथ साथ आपने नियरेस्ट लोकेशंस भी आपने टूर की, जैसे आप कल सुरू वैली गए, फिर बॉर्डर इलाके आपने देखे, कारगिल मार्केट आप घूमे। तो टूरिज्म पॉइंट के हवाले से अगर बात करें तो जैसे आप लोगों ने हमेशा फरमाया कि कारगिल में भी काफ़ी पोटेंशियल है, तो कारगिल के साथ साथ अगर टूरिज्म के हवाले से कारगिल में कितना पोटेंशियल है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू को, और साथ ही साथ हमारे लोकल जर्नलिस्ट में कितने पोटेंशियल आपको आने वाले दिनों में लगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं खाली इंडिया में नहीं, क्योंकि मेरा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, तो आज तक के हवाले से मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने का अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई है। मैं स्विट्ज़रलैंड भी गया हूँ, कई रोज़ मैं वहाँ रुका भी हूँ, लेकिन जो ब्यूटी हमारे पास है, हमें उसकी कदर नहीं है। नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल, अगर मैं कंपेयर करना चाहूँगा स्विट्ज़रलैंड और हमारे यहाँ के लैंड से, भले से हमारे यहाँ सहूलत कम है, अगर आप कोई एक पिक्चर उठा के देख लीजिए, नेट से देख लीजिए, और हमारे कारगिल के पिक्चर एक लगा के देख लीजिए, दोनों में ज़मीन आसमान, वो लगता है बिल्कुल प्लास्टिक। स्विट्ज़रलैंड मतलब परफेक्शन से बहुत ज़्यादा है, उसमें फील नहीं है, उसमें इमोशन नहीं है, उसमें अध्यात्म नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जब आप जाते हैं ना, मैं जैसे 2 रोज़ा में घूमा हूँ यहाँ पे, तो आपको एक मेडिटेटिव एहसास होता है चीज़ों का, आप अपने अंदर एक्सप्लोर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतना खूबसूरत है। और इसमें देखिए, हम गवर्नमेंट से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ फैसिलिटी बढ़ाए, और आपका सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है, हमें या तो लेह में उतरना पड़ता है या फिर हम कश्मीर में उतरते हैं, वो हमारा टाइम वेस्टेज है। एज ए टूरिस्ट बात कर रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो फैसिलिटी हमें मुहैया किसी भी तरह से करानी चाहिए गवर्नमेंट को। और दूसरी बात यह है कि बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है वो, बट एक्सेस, क्योंकि जो टूरिस्ट है ना, वो शौक से आता है, और बहुत सारे टूरिस्ट हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि आप पहले ले उतरिए, फिर वहाँ से टैक्सी करिए, फिर यहाँ पे आइए। तो वो अगर सहूलत एयरपोर्ट की यहाँ पे हो जाए तो माशाल्लाह 4 चांद लग जाएंगे। सर, इज दिस योर फर्स्ट विजिट टू लद्दाख? नहीं, मैं बहुत घुमा हूँ, लद्दाख में भी, लेह में भी, कारगिल में भी, जम्मू कश्मीर, बहुत बार मैं एज ए जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट, मेरे लिए अल्लाह ताला की नेमत थी कि मुझे ये मौका मिला कि मैंने पूरी इंडिया को बाय रोड कवर किया, और वर्ल्ड के मैक्सिमम शहरों में, देशों में गया हूँ। लेकिन हमारे पास जो है ना, हमें उसकी अहमियत नहीं है। अगर हम उसकी अहमियत को हम उसको दोबारा कर पाएँ तो बेहतर होगा। और उसमें हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जो कहना चाहता हूँ, देखिए, हम दूसरों की तरफ मुँह उठा के देखते हैं कि वो हमारी मदद कर दे, तो क्यों ना हम खुद अपनी मदद अपने आप करें। तो हम एज ए जर्नलिस्ट पॉलिटिकल खबरें करें, वो ज़रूरी है, आप किसी चैनल से जुड़े हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी रोजी रोटी है। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है आपके रीजन को बढ़ाने के लिए, तो अगर आप 10 स्टोरी पॉलिटिकल करते हैं तो एक स्टोरी आप अपने टूरिज्म पे कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल अफरोज़ खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे रिसोर्स पर्सन थे इस 2 रोज़ा वर्कशॉप के, तो आप बने रहे इस महफिल में शामिल हुए, इस तकरीब में DIPR कारगिल की तरफ से, और रज़ा अली आबिदी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर की सदारत में ये एक जर्नलिस्ट वर्कशॉप मुनक़िद हुआ। इसमें मीक़त हाशमी साहब और जमाल अफरोज़ साहब और इफ्तिखार साहब, तीनों रिसोर्स पर्सन
वो उन्होंने यहाँ लेक्चर्स दी और आप लोगों के साथ रूबरू हुए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक इंटरेक्शन बहुत बढ़िया रहा है, पॉजिटिव इंटरेक्शन रहा है, 1-2 वे कम्युनिकेशन रहा है। और ऊपर से ये दोनों निकात हाशमी साहब और जमाल अफरोज साहब दिल्ली से इतनी दूर से यहाँ आए और इस महफिल को 4 चांद लगा दिया इस तकरीब को, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करूँगा। और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के करगिल डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस से इनके कारकुन रज़ा अली आबिदी साहब और AIO अनवर अली सरपा साहब के उनके काम की सराहना करता हूँ। और इस सर्दी में भी उन्होंने जी जान लगा के इस वर्कशॉप को मतलब रियलिटी तक पहुँचाया। तो अब हमारे एफर्ट्स जितने भी होंगे उसको साइड में रखते हुए हम आप लोगों के कंट्रीब्यूशन की ज़्यादा दाद देना चाहेंगे और हमेशा देते भी आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के शमूलियत की वजह से ही ये कामयाब हुआ है ये वर्कशॉप। अगर नहीं होता तो हम बस एक फंडिंग सोर्स रह के ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी बन के रह जाते। और ज़रूरी ये था कि आप लोग जी जान लगा के और अपनी मेहनत तो कर रहे हैं बेशक, लेकिन वो काम थोड़ा साइड में रख के आज ये दो रोज़ा जो वर्कशॉप हुआ उसमें इतने क्वांटिटी में आके नंबर्स में आके इसको 4 चांद लगा दिए। हम चाहते हैं कि आपके स्किल अपग्रेडेशन हो, इन्हांसमेंट हो, ओरिएंटेशन बहुत बढ़िया मिले। बाहर के जितने भी रिसोर्स पर्सन आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं और नेशनल लेवल के रेप्यूटेड पर्सनालिटीज़ आते हैं, उनके साथ उनकी एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका उनको मिलता है। लेकिन आप कितना कुछ सीख पा रहे हो हमारे लिए वो ज़रूरी है, और वो आपसे कितना कुछ सीख के जा रहे हैं वो तो उन्हीं को पता है, और वो लोग अच्छे मेमोरीज लेके जाते हैं। लेकिन हर बार जब भी ऐसे वर्कशॉप्स हुए हैं, रिसोर्स पर्सन बाहर से हैं, हमेशा तारीफ़ करते हुए गए हैं और इम्प्रेस होके गए हैं। और ये जान के बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं कि आप लोग इस मुश्किल की घड़ी में भी इतनी मुश्किलात का सामना करते हुए भी कितना बढ़िया रिपोर्टिंग करते हो, पब्लिक के ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट तक लाते हो, सोसाइटी में जितने भी इल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी सबके सामने ला के उसके बारे में हल निकालने की कोशिश करते हैं सब मिल के, और बहुत बड़ा पॉजिटिव रिपोर्टिंग वाला माहौल रहता है। आपके वजह से ही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो भी ऊपर के सामने आए हैं, लोगों तक पहुँचे हैं इनके बारे में। ज़रूरी ये है कि जितना भी छोटे छोटे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में छोटी छोटी बातें और बहुत उम्दा ज़रूरी इंटरेस्टिंग बातें आप पब्लिक तक ले जा रहे हो, और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। हम शुक्रिया अदा आप लोगों का करते हैं, हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और कोशिश इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की यही रही है कि आपके एक्रेडिटेशन हो, आपके वेलफेयर के लिए हम कुछ स्कीम्स निकालें। कोई एक्सीडेंट का कोई इशू हो या कहीं हेल्थ का कोई बेनिफिट की ज़रूरत है, वो भी उस स्कीम के तहत आप तक पहुँचाया जाए। एक तो वो ऊपर से न्यूज़पेपर्स की एम्पावरमेंट भी होती है, साथ साथ फिल्म मेकर्स को भी हम सपोर्ट देते हैं, और वो भी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही होगी कितने भी होनहार मीडिया पर्सन्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको रेवेन्यू अर्निंग का एक सोर्स मिले, और इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल पे कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे जाके अपना हुनर दिखाने के लिए उनको एक मौका मिले। बस बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे जॉइंट डायरेक्टर काचो इम्तियाज़ साहब, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के में जॉइंट डायरेक्टर है, और साथ में हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रज़ा आबिदी साहब को, कि इन्होंने जो है ना पिछले कुछ सालों से हमारे प्राइवेट मीडिया या जितने भी प्रेस क्लब के मेंबर्स उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट करने के लिए ये वर्कशॉप रखा है। पिछले साल भी इसको किया था, और दिल्ली से जो है ना आज तक में जो 17-18 साल से काम किया, और हमारे अफरोज खान साहब को यहाँ पे एज ए रिसोर्स पर्सन लाया है, और भी काफ़ी हुनरमंद लोगों को यहाँ पे एज ए रिसोर्स पर्सन लाया है। मुझे उम्मीद है कि ये 2 दिन का वर्कशॉप आप लोगों के लिए बहुत मुफीद रहा होगा, क्योंकि जैसे भी जो है ना टेक्नोलॉजी जैसे आगे एडवांस में बढ़ते जाते हैं, उस हिसाब से किसी भी प्रोफेशनल में काम करने वाला है उनको अपडेट रखने के लिए इस किस्म की वर्कशॉप का बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट था। और हम कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आने वाले दिनों में भी जो है ना इस किस्म के वर्कशॉप जो है ना हमारे डिपार्टमेंट की ओर से आप लोगों को फैसिलिटेट करें। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.